کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بھئی آج میرا ارادہ ہے کہ آپ سے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں کچھ گپ شپ کی جائے، کچھ گفتگو کی جائے جو بلا شبہ بر صغیر پاک و ہند کی نمایاں ترین مذہبی شخصیت کہلا سکتی ہے۔ جی ہاں، میرا اشارہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی جانب۔ واقعہ یہ ہے کہ مولانا کی شخصیت ایک بہت بڑی شخصیت ہے اس حوالے سے کہ ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو کہ جو مولانا کو پہچانتا نہ ہو، جس نے ان کی بیانات کو سنا نہ ہو، چاہے ان پر اعتراض کیا ہو یا ان سے اتفاق کیا ہو، لیکن مولانا کو سنا سب نے ہے، سمجھا سب نے ہے، اور کسی حد تک سراہا بھی سب نے ہے۔ لیکن واقعہ یہ بھی ہے کہ مولانا کی شخصیت پر جتنے اعتراضات اور الزامات لگے ہیں وہ تو شاید کسی ماڈرنسٹ مفکر کے اوپر بھی نہیں لگا کرتے۔ یعنی ایسا ہے کہ جیسے ہر حلقے کی جانب سے گاہے بگاہے مولانا کو نشانہ بنایا جاتا رہتا ہے۔ یعنی ایسا کیوں ہے؟ یہ سوال آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے۔ لیکن کچھ الزامات جو ہم سب سنتے آئے ہیں، مثال کے طور پر یہ کہ بھئی مولانا جو ہیں وہ پرانے فلمی گیت گنگناتے ہیں۔ او ہو ایک قیامت آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مولانا تو فنکاروں، اداکاروں اور گلوکاروں کو ہی دعوت دیتے ہیں۔ او ہو زمین پھٹ گئی بھائی اس کے اندر۔ او بھائی مولانا تو جو ہے نا، انہوں نے دعا میں پاکستانی فوج کے لیے دعا کر دی ہے۔ او ہو، یہ تو جرنیلوں کے ہاتھ بک گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ قیامت آ گئی ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ او مولانا نے تو فلاں سیاست دان کے لیے دعا کر دی ہے، اس کی جو ہے نا تعریف کر دی ہے۔ او ہو بھائی، اب تو جو ہے نا اس کا پکا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے نا حکومتی ٹاؤٹ بن گئے، ٹھیک ہے۔ او ہو مولانا نے تو بھائی اپنا بزنس شروع کر دیا ہے، ہاں دین بیچ دیا، ٹھیک ہے، دین بیچ ڈالا مولانا نے، ٹھیک ہے۔ اور مولانا تو بھائی وہ انگلینڈ میں ایک مہنگی جو ہے وہ لیموزین سے اتر رہے تھے، کار سے، دیکھا کتنا پیسہ چھاپا ہے مولانا نے، ٹھیک ہے۔ قیامت آ گئی بھائی، یہ تو بہت خطرناک جو ہے نا مولانا نے کام کیا ہے۔ اور مولانا جو ہے نا، انہوں نے اپنی خودکشی کر لینے والے بیٹے کے بارے میں روتے ہوئے دعا کر دی کہ بھائی وہ ذہنی مریض تھا۔ یہ تو بھائی انہوں نے ستم دے ڈالا، دیکھا کیسے منافق ہیں۔ ہماری باری میں تو کہتے تھے خودکشی حرام ہے، اور اب دیکھو اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مولانا جو ہیں انہوں نے فلانے بریلوی عالم کے پیچھے نماز پڑھ لی، فلانے شیعہ عالم سے ملاقات کر لی۔ او ہو بھائی، یہ تو اینڈ آف دا ورلڈ ہے، قرب قیامت آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب پر اعتراضات، الزامات کا ایک سیلاب ہے جو ہر وقت لوگوں کی جانب سے برپا رہا ہے۔ لیکن دوستو، سچ کہوں اور میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ مجھے اللہ کے لیے مولانا طارق جمیل سے محبت ہے، بالکل محبت ہے۔ کیوں ہے یہ محبت؟ اس لیے نہیں کہ میں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں، نہیں، میں ان سے بہت ساری چیزوں میں اختلاف کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں ان کا نہایت احترام کرتا ہوں، اور انہیں ایک بہت بڑی شخصیت گردانتا ہوں۔ وہ ان چند نایاب علماء دین میں سے ہیں کہ جو لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، توڑ نہیں رہے، جن کا معاملہ فرقہ پرستی نہیں ہے، جن کا معاملہ یہ ہے کہ جڑ کے بیٹھو، وہ دیوبندی ہوں، وہ بریلوی ہوں، وہ سنی ہوں، وہ شیعہ ہوں، یہ جوڑنے والے لوگ ہیں، اور بھائی مجھے تو انہی سے تعلق ہے۔ مولانا نے پلٹ کر جوابات کبھی نہیں دیے۔ یعنی ابھی حال میں کچھ جو ہے نا مجھے ایسا محسوس ہوا ہے کہ مولانا بھی جو ہے نا اس دباؤ میں آ گئے ہیں، جو خاص کر تبلیغی جماعت میں ہی کچھ اختلافات ان کے باہمی ہوئے تو اس کے بارے میں ان کے کچھ بیان آئے، لیکن ان کا جو عمومی رویہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو کبھی پلٹ کر تانا نہیں دیا، کبھی پلٹ کر کوئی سخت بات نہیں کہی، ٹھیک ہے، بلکہ اکثر معافی مانگ لی، فون کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ محبت سر سے پیر تک ان سے جھلکتی ہے، اور میرے لیے تو یہ ایک مشعل راہ ہے۔ مجھے موقع ملے کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کے پیروں میں بیٹھ کر ان کے قدم داب سکوں تو میرے لیے یہ سعادت ہوگی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ میرا مزاج جو ہے وہ مولانا طارق جمیل کی بہت ساری باتوں سے مختلف ہے، لیکن اختلافات اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ بہت بڑے شخص ہیں، وہ ایک بڑی شخصیت کے حامل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑے بڑے کام لیے ہیں، اور وہ ایک ایسی شخصیت ہیں، یقین کیجئے، یہ لکھ لیجئے کہیں، چاہے آپ آج میری بات پر ہنس رہے ہوں، لیکن وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں ہمارے بعد کی نسلیں بھی بڑے احترام سے ذکر کریں گی، بتائیں گی کہ کیا خوبصورت شخصیت ہوا کرتی تھی۔ جو شخصیت جس وقت حیات ہوتی ہے نا، اس کی قدر نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے، اس کو طرح طرح کے تانے دیے جاتے ہیں۔ وہ جو ہے وہ امام ابن تیمیہ ہو، ٹھیک ہے، وہ امام مالک ہوں، وہ مولانا مودودی ہوں، ٹھیک ہے، کسی شخصیت کے حوالے سے بات کر لیں، جو بھی آپ کی پسندیدہ شخصیت ہو، ان کو
उस जिंदगी के अंदर जब वो जिंदा होते हैं तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो उनके ऊपर ठट्टे करते हैं, उनके ऊपर एतराजात करते हैं, लेकिन आने वाला वक्त बताता है कि वो कितनी बड़ी शख्सियत के हामिल थे। तो मौलाना तारिक जमील की शख्सियत बहुत अजीम है, और बिलखुसूस तबलीग के हवाले से। यानी मौलाना से ये तवक्को रखना कि वो तहकीकी मकाले लिखेंगे तो ये बात ठीक नहीं है, फिर आप मायूस ही होंगे। ठीक है, उनका मामला ये है ही नहीं, वो तबलीग के आदमी रहे हैं, और तबलीग की बात ही यही है कि आप लोगों को जोड़ें, लोगों में नरमी पैदा करें। ठीक है, और उस हवाले से मौलाना का काम या मौलाना के अफकार वो अनमोल हैं। तो मैं तो भाई मौलाना का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इस हवाले से एतराज़ात हैं, इख्तिलाफ़ात हैं। एक बड़ा इख्तिलाफ़ मैं आपसे अर्ज़ भी कर देता हूँ कि मौलाना जो जब बाज़ औक़ात क़िस्से सुना रहे होते हैं जन्नत के, ठीक है, या हूरों के वाक़यात सुना रहे होते हैं, तो उसमें मुबालगा कर जाते हैं, और बहुत सी ऐसी हदीसें वो उसमें कोट कर जाते हैं कि जो कि या तो ज़ईफ़ हैं या मौज़ू हैं। ठीक है, तो ज़ईफ़ और मौज़ू हदीसों को भी वो सुना जाते हैं उसके अंदर। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पर मुझे भी, मेरी तबीयत पर भी बड़ी गिरां गुजरती है, और मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो। लेकिन इसके साथ साथ एक बात मैं आपको मौलाना के दिफा में ये भी बता दूं कि ये जो बात है कि आपने ज़ईफ हदीस सुना दी किसी उस पर, ये मौलाना का ज़ाती फेल नहीं है। आपको शायद ये बात मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन ये कि ये हमारे यहाँ अहले सुन्ना में, ठीक है, ये दो गिरोह मौजूद हैं इस बारे में। उनमें से एक गिरोह ये कायल है इस बात का कि अगर कोई बात नसूस से साबित है या अपनी असल से साबित है, तो उसके फजाइल में अगर आप कोई ज़ईफ हदीस भी पेश कर देते हैं, कोई कमजोर वाकया भी पेश कर देते हैं, तो वो कबूल है। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास कुरानी आयात से या सही हदीस से ये बात साबित है कि जन्नत में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है, या हूर बहुत खूबसूरत होगी, ठीक है, या जो भी मामला इस तरीके का हो, जो बात बिल्कुल सही नसूस से आप पे साबित हो गई। अब ये बुनियादी तौर पे बात साबित हो गई। अब उसके महासिन में, उसके फजाइल में अगर कोई ऐसी हदीस आ गई है जो कि सही नहीं है, ज़ईफ है, या कोई एक ऐसा वाकया आ गया है जो कि सही तहकीकी मेयार पे पूरा नहीं उतरता, तो उसे सुना देने में भी कोई हर्ज नहीं है। ये वो राय है जो अहले सुन्ना के एक गिरोह में मौजूद है, ठीक है, और लोग उसे कबूल करते हैं। जाहिर है हम उससे इख्तिलाफ करते हैं, मैं भी इख्तिलाफ करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अहले सुन्ना के ही बहुत से आलिम ऐसे हैं जो इस बात को दुरुस्त नहीं समझते। खुद मौलाना तारिक जमील को मैं एक बार सुन चुका हूं, मेरे पास रेफरेंस नहीं है अभी, लेकिन मैंने उन्हें सुना है कि जहां उन्होंने इस बात पर यह कहा कि भाई एक आदत हो गई वो चीज़ सुनाने की, बताने की, बयान करने की, कि भाई ज़ईफ हदीस भी जो है ना इस हवाले से सुना दी कि भाई फजाइल के दर्जे के अंदर है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। वो भी कायल है इस बात के, लेकिन ये राय एक मौजूद है जो क्लासिकल तौर पे हमारे यहाँ उलमा में राइज रही है। इसी वजह से आप देखते हैं कि सिर्फ मौलाना तारिक जमील नहीं, बारहा हजारों लाखों आपको ऐसी किताबें मिल जाएंगी मजहबी कि जिसके अंदर ज़ईफ वाकयात दर्ज होते हैं, और वो बड़े आराम से उसको बयान कर रहे होते हैं, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े नाम बयान कर रहे होते हैं उसे। तो ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि वो जो एक असूल मौजूद है इनके यहाँ, उसको बुनियाद बनाकर आप फजाइल की मद में जो है ना वो सुना देते हैं। और आप जानते हैं कि तबलीगी जमात के तो निसाब में ही फ़ज़ाइल अमाल और फ़ज़ाइल सदक़ात, तो फ़ज़ाइल के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर है। तो ये वो बात है, तो इस पर मुझे इख्तिलाफ है। उनके सामने मैं जो है ना, या जितने भी जो तबलीग के लोग हैं उनके सामने मैं मुअज़्ज़िज़ मुअद्दिबाना अंदाज में जो है वो ये गुजारिश कर सकता हूँ कि भाई इस पर गौर कर लें, ठीक है, और इसके अंदर जो है ना ये मामला ना करें कि जहाँ ये बहुत से लोगों को बुलाने का बाइस बनता है कि कोई देहाती तबीयत का आदमी है तो वो खुश हो गया, उसको जन्नत का शौक हो गया, किसी ज़ईफ हदीस की मदद से कोई फजीलत उसके सामने ऐसी आ गई, वहाँ ये बात जो है वो कुछ लोगों के लिए जो ज़रा इल्मी या तहकीकी मिजाज रखते हैं उनके लिए बड़ी गिरां बन जाती। तो हमें इक्तिफा करना चाहिए कुरान पर और सही हदीस के ऊपर। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम ज़ईफ हदीस के ऊपर जो है ना वो करें। हैविंग सेड दैट, ये बात के मौलाना जो हैं वही सिर्फ इस बात के मोरद इल्ज़ाम है कि वो जो है ना ज़ईफ़ चीज़ें सुनाते हैं और बाकी सब जो है ना वो ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको ये बयान कर दिया। इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल मौलाना के महासिन इस कदर ज़्यादा हैं, ठीक है, वो इतने ज़्यादा हैं और उनके फ़ज़ाइल इतने ज़्यादा है खुद मौलाना के, अल्लाह ताला ने उनसे इतना काम लिया है कि भाई मेरे और आपके जैसे लोगों का तो यही बनता है कि वो या तो अपना मुंह बंद रखें, ठीक है, अगर नहीं तारीफ कर सकते, वरना तौसीफ करें, उनसे सीखें, ठीक है। तो बड़ी गैर मामूली शख्सियत है। मेरे अंदाजे से एक छोटा सा वाक़या भी आपको सुना देता हूँ मौलाना से, एक यानी कहिए कि एक इंटरेक्शन वाली बात, कि मैं जो है वो इंग्लैंड में एक मस्जिद के अंदर मुझे पता चला कि भाई मौलाना आ रहे हैं,
ठीक है, तो वो एक हंगामा मच गया भाई, सारे लोग वो मस्जिद के अंदर, कि भाई फलां तारीख को मौलाना तारिक जमील का बयान है। तो जैसे हुआ करता है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि भाई ये तो मौलाना तारिक जमील आ रहे हैं और मोहल्ले की मस्जिद में आ रहे हैं। तो मैंने जो है वो काफ़ी देर से पहले जाकर वहाँ मैं बैठ गया और बिल्कुल सामने की नशिस्त संभाल ली जहाँ पे मौलाना ने बैठना था। और बड़ा मैं खुश था कि भाई अब मैं सामने से सुन सकूंगा मौलाना को। और कोई घंटा भर पहले जाके मैं बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग आते गए, पिंडाल भरता चला गया। ऐसे में जो है ये भी था कि बस अब मौलाना आने वाले हैं कि अचानक जो है वो हमारे एक तबलीग के ही दोस्त हैं, वो बड़े अरसे बाद वो आए अंदर। तो उन्होंने देखा कि मैं आगे बैठा हुआ हूँ, तो उन्होंने वहीं से मुझे बुलाया। उनका अजीम भाई यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए। अब मुझ पर जो है ना एक घड़ों पानी पड़ा। मैंने कहा यार, अगर यहाँ से जगह छोड़ता हूँ तो मौलाना को अब सामने से ना सुन पाऊंगा, और अगर नहीं छोड़ता तो उनकी दिल आजारी होगी कि वो बुला रहे हैं मुझे। तो बहरहाल मैंने फिर वो जगह छोड़ी और मैं उनके पास जो है वो ये कहिए कि कुड़ते हुए दिल के साथ जा पहुंचा उनके पास। तो उन्होंने कहा कि अजीम भाई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसी मस्जिद में हमने एक मदरसा बनाया है ऊपर। तो वो मदरसा है, मैं चाहता हूँ आपको मैं वो मदरसा दिखाऊं और छोटे बच्चों की तालीम का एहतमाम होगा। और वो मुझे ले गए ऊपर ना। तो वो कोई दूसरे फ्लोर पे था, तो वहां पर वो मुझे दिखाने लगे। अब सच्ची बात यह है कि मेरा दिल तो वहीं रुका हुआ था कि यार सामने की जगह चली गई। लेकिन बहरहाल अपने एक तकल्लुफ में, अपने दोस्त की मोहब्बत में उनके साथ हम चले गए और देखने लगे कि अच्छा अच्छा ये क्लास होगी, यहाँ पर यूं होगा। अभी ये बात चली रही थी कि अचानक इस दूसरे फ्लोर पे जहां हम मदरसा देख रहे थे, एक हलचल सी हुई। और हलचल हुई और अचानक से दरवाजा खुला और दरवाजा बंद कर दिया किसी ने। तो हमने पलट के देखा तो भाई मौलाना तारिक जमील साहब और दो तीन हजरात उनके साथ खड़े हुए हैं। पता चला कि लोगों से महफूज करने के लिए कि लोग उनके पास ना इकट्ठे हो जाएं, उनको अभी पहले सेकंड फ्लोर पे लाया गया। और उन्हें पता नहीं था कि हम पहले से ही वहां मौजूद हैं। तो ये अल्लाह ताला ने एक सबील बना दी, मौलाना से मुलाकात की और फिर वहां नमाज अदा हुई। तो ये बड़ी सादत थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक छोटा सा इंटरेक्शन है जो मेरा उनसे हुआ, हल्की फुल्की सी। ये कहिए कि लोग बात कर रहे थे तो उन्हीं में मैं भी मौजूद था। लेकिन अल्लाह पाक ने ये एक सबील बनाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कभी उनसे गुफ्तगू का या उनके साथ बैठकर उनसे सीखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। ना ही जो है ना मैं कोई तबलीगी जमात से बाकायदा वाबस्ता रहा हूँ। लेकिन बहरहाल वो एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। तो जब भी आप उन पर एतराज़ात करते हैं, ज़रूर कीजिए, कर लीजिए एतराज़ात, लेकिन कम अज़ कम उस अदब को मलहूज़ रखते हुए। क्योंकि अगर के ये वैसी ही मकबूल शख्सियत हैं अल्लाह के यहाँ जैसे कि मेरा गुमान है, तो फिर हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए, अल्फाज को परख के पेश करना चाहिए। और कोई भी इल्ज़ाम लगाते हुए सोचना चाहिए कि क्या ये इल्ज़ाम हम पर साबित है, हमें 100% यकीन है कि ये ऐसा ही है। और अगर नहीं है, इसका जवाब नफ़ी में है, तो फिर इज्तनाब करना चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।